Good morning, students. Let's start with revision of ledger, and with few illustrations I'm going to explain you the basic concept of what ledger is. Before ledger, we have done the chapter journal. Journal was known as the book of original entry. Right? The first book in which we used to record all the transactions. आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करते ही जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, गुड्स खरीदने की, बेचने की, कैपिटल इन्वेस्ट हुआ बिजनेस में, राइट, ईच एंड एवरीथिंग we are going to first record in the way of journal, and that was known as the book of original entry. From the book of journal, next step that we have to do is post all these entries into the ledger account. हमें ledger accounts बनाने होते हैं, and ledger is basically known as the books of final entry. Why it is known as books of final entry? Because all the transactions are recorded from the original book to here. Now in journal, what we do? We write that we have invested capital, cash to capital account, we do purchases, we receive cash. Many transactions happen. For example, at the end of the month, I want to know what is the balance of cash in my account. मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, इतना मेरा सेल्स हुआ है, इतना मेरा परचेज हुआ है, फाइनली मेरे पास कैश कितना बचा है. अब जर्नल में क्या किया होगा मैंने, ऐसे करके जो भी मैं बनाती हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट करके मैंने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस लिख दी होंगी ऑन द डेली बेसिस, राइट. कैश की, परचेजेस की, सेल्स की, ड्राइंग्स की, एक्सपेंसेस की, रेवेन्यूज़ अर्न करने की बहुत सारी दिखती होंगी. मुझे इसमें से एक ही चीज़ जाननी, कैश कितना बचा है. कैश बहुत सारा बीच में हुआ होगा, सपोज़ यहाँ हुआ है, फिर रेवेन्यू हुआ है, फिर कैश हुआ है. तो मुझे जानना है कि कैश की ट्रांजैक्शंस जो हैं ओवर हेयर, दीज, क्या बैलेंस बच रहा है. तो क्या मैं उस टाइम पे बैठ के टैली करेंगे? नो. व्हाट वी डू, हर एक चीज़ का, कैश का, परचेज का, सेल्स का, सबके टी शेप के अकाउंट्स खुलते हैं. ऑल दीज अकाउंट्स वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 6 while preparing accounting procedures. We have learned how to make a T-shape account. वो ही हम यहाँ बनाते हैं. Once we balance, their balances are being sent for preparing the trial balance. Right? तो ऐसे होता है. अभी मैं कुछ ट्रांजैक्शन लिख के आपको बताऊंगी कि हम फाइनली अकाउंट्स कैसे बनाते हैं. We are just going to revise the same chapter 6 thing. Just see to it very carefully. Suppose, let's see, on April 1, it's 2020 only. On April 1, there is a transaction. Say, business started with cash. Business started with cash, right? So what are you going to pass? The journal entry first of all. And what is going to be the journal entry? Your journal entry will be cash account debit to capital account. Say it was for 1 lakh, so you are going to write 1 lakh. This is the amount that we have started with. Say on April 4, we have deposited some amount in the bank account, right? Say deposited rupees 50,000 in bank.
तो आपका बैंक इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज हो जाएगा. सो जर्नल एंट्री इज गोइंग टू बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, say with the amount of 50,000. We'll take one more entry and that's it. Say on April 8 I have made some purchases. Say purchased goods for cash, say rupees 30,000. So what is going to be the journal entry? It is going to be purchase account debit to cash account, say with the amount of 30,000 rupees. यही हमारी एंट्रीज हो रही है तीनों. अभी मुझे इन्हीं तीनों को जर्नल बना लिया. फर्स्ट स्टेप वाज टू प्रिपेयर जर्नल. नाउ आई हैव टू पोस्ट ऑल दीज एंट्रीज इनटू लेजर. सो हाउ एम आई गोइंग टू प्रिपेयर द लेजर? मुझे सबके अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे. क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है. तो पहले देखते हैं कि इन एंट्रीज़ के हिसाब से कितने अकाउंट्स बनेंगे. एक तो आ गया कैश अकाउंट, एक आ गया कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट. कैश नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी भी यहाँ पे आ गया. परचेज अकाउंट, फिर से कैश रिपीट हो रहा है. सो इन दीज 3 एंट्रीज वी हैव टू प्रिपेयर 4 अकाउंट्स. Let's see how are we going to prepare the accounts. Just as you already know, it is a T-shape account. जैसे हम T-shape account बनाया करते थे वैसे ही बनाएंगे. So I'm just going to make it over here and show you how we are going to prepare these accounts. There are going to be 4 columns each side. This is our T-shaped account. So I am going to prepare 4 accounts, one for cash, one for capital, one for bank, and one is for the purchases for all the transaction. And now we are going to learn that how we are going to pass all these entries, journal entries, in the ledger accounts. So this is our account. What we generally do, यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखेंगे like cash account. This is the debit side, this is the credit side, and we have 4 columns on each side: date, particulars, journal folio amount, date, particulars, journal folio amount. Again, this is capital account, so I'm going to write capital account. Date, this is debit side, date, particulars, journal folio amount. Again the same thing, date, particulars, journal folio amount. Similarly, you can write for each and every side. We had to make a bank account and a purchase account. Just going to explain you the concept that how are we going to post them. Okay, एक एक करके देखिए.
दो चीज़ें समझाऊंगी, दोनों को अच्छे से समझना। आवर फर्स्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 1 लाख से। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे मुझे 1 लाख लिखना है अप्रैल 1 को। फिर से बोलो, क्या मैंने समझा? कैश टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 1 लाख को, कब? अप्रैल 1 को। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने अमाउंट से, 1 लाख से, कब? अप्रैल 1 को। और रीज़न क्या है, क्या इंट्रोड्यूस हुई है? कैपिटल। तो कैश क्यों डेबिट हो रहा है? बिकॉज ऑफ कैपिटल। यहाँ आ गया रीज़न। अब इसका दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ, दूसरा एस्पेक्ट। कैश क्या है? एक एसेट है, सो इट इज़ एन एसेट अकाउंट। आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है, अगर कोई भी एसेट, एक्सपेंस, ये दोनों चीज़ें अगर इंक्रीज़ होती है तो डेबिट साइड लिखते हैं, डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। ऐसे ही आपकी कोई भी लाइबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ या इनकम्स या कैपिटल, ये अगर बढ़ती हैं तो क्रेडिट साइड, ऑपोजिट, कम होती है तो डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट क्या है? हमारा एसेट। जर्नल एंट्री क्या थी? बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस हुआ, कैश इंट्रोड्यूस हुआ मतलब एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। एसेट इंक्रीज़ होता है तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे लिख दिया, डेबिट साइड पे 1 लाख, रीज़न कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट देखो, उसी एंट्री को मुझे कंप्लीट करना है। मैंने कैश वाली साइड कर दी। दूसरा है टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कितने से? 1 लाख रुपीज़ से। तो कैपिटल अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगी विद द सेम अमाउंट 1 लाख रुपीज़ ऑन अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट। अब कैपिटल का नेचर कैपिटल ही है, कैपिटल बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड, ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। और घटती है तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। कैपिटल बढ़ रही है बिजनेस में, क्यों? क्योंकि कैश इंट्रोड्यूस हुआ है 1 लाख रुपीज़। लेट्स सी नेक्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक डेबिट हो रहा है 50,000 से, तो बैंक की डेबिट साइड पे लिख देंगे 50,000 रुपीज़ ऑन अप्रैल 4। किसको डेबिट कर रहा है बैंक? कैश को। तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट। फिर से समझो, बैंक क्या है? हमारा एसेट है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट साइड, कम होता है तो क्रेडिट साइड। तो बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है। पर कैश का नेचर देखो, कैश क्या हो रहा है बच्चों? क्रेडिट हो रहा है। तो कैश की क्रेडिट साइड पे मुझे 50,000 रुपीज़ लिखना है। तो कैश की ये जो क्रेडिट साइड है, यहाँ मैंने लिखा 50,000 रुपीज़ अप्रैल 4, रीज़न बाय बैंक अकाउंट, राइट। क्रेडिट साइड लिखा है, रीज़न देखो, एसेट डिक्रीज नहीं हो रहा, आपने कैश उठा के बैंक में डाल दिया तो कैश तो कम हो गया, और कैश कम होता है तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय बैंक अकाउंट। तो हमारी एंट्री जो देखो यहाँ पे कैश की बुक में भी हो रही है और बैंक के अकाउंट में भी हो रही है। लास्ट एंट्री देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज डेबिट हो रहा है 30 से, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे 30,000 रुपीज़ से अप्रैल 8 को विद टू कैश अकाउंट। अब परचेज क्या? हमारे एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, राइट। तो हमारे खर्चे बढ़ रहे थे, क्यों? क्योंकि हमने कैश में पेमेंट करी है 30,000 रुपीज़ की। और कैश क्या हो रहा है? कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है 30,000 से। सो कैश की क्रेडिट साइड जो है यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 30,000 रुपीज़। कैश देखो कम नहीं हो रहा क्योंकि हमने पे किया है, तो एसेट कम होगा तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। अप्रैल 8, रीज़न क्या है? बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। अगर मैं आपको बोलूँ कैश अकाउंट देखो अभी, और मुझे अगर कैश अकाउंट को बैलेंस करना है, फॉर एग्जांपल हमें हर अकाउंट को बैलेंस करना होता है, चारों ट्रांजैक्शन होगी, नाउ वी हैव टू बैलेंस इट। जो भी हायर
अमाउंट होता है यहाँ लिख देते हैं। देखो 50 + 30 80 हो रहा है, ये 1 लाख हो रहा है, तो पहले नीचे हम टोटल में लिख देंगे, टोटल हो गया 1 लाख रुपीज़। पर ये साइड तो मैच नहीं हो रही, इसको मैच करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 1 लाख -50 -30 कितना बचेगा? 20। बैलेंस हो गया ना, इसको लिखते हैं हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और हमेशा मंथ की जो लास्ट डेट होगी, जैसे अप्रैल है तो अप्रैल 30 को हमने यहाँ पे बैलेंस लिख देना है। अब कैश अकाउंट को देख के ही मुझे पता लग जाएगा, मुझे जर्नल देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता लग जाएगा कि अप्रैल 1 को मेरे पास 1 लाख रुपए थे, 4 तारीख को मैंने बैंक में दे दिए, 8 तारीख को मैंने खर्चे करे, और अभी भी मेरे पास 20,000 रुपये पड़े हुए हैं। ये मेरा बैलेंस है, ठीक है। ये हमने बैलेंस कर दिया। इसका मतलब जब नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, अगर मैं इस अकाउंट को थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ, लाइंस ड्रॉ करके थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ, तो अब जब मेरा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा मई में, अप्रैल देन मई। तो मई में भी मैं इस 20,000 रुपये को यूटिलाइज़ कर सकती हूँ ना। ये जो मेरा बैलेंस बचा हुआ है 20,000 रुपीज़ का, इसे मैं वेस्ट थोड़ी ना होने दूँगी। जो मेरा बच गया है उसे नेक्स्ट मंथ में हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो इस बैलेंस को हम क्रॉस करके लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़। और ये क्या है? मेरे नेक्स्ट मंथ का बैलेंस है, तो इसको मैं लिखूँगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वापस हम इसको लेकर आए हैं, ब्रॉट डाउन, ठीक है। और जो यहाँ बैलेंस बचता है, सपोज़ आपका जो यहाँ बैलेंस बचता है उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड आपकी ज़्यादा थी ना क्रेडिट से, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। सिमिलरली अब मुझे कैपिटल अकाउंट को भी टैली करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा 1 लाख रुपीज़ दोनों साइड पे। पर आप बोलोगे मैम यहाँ तो 1 लाख है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मुझे एंड डेट को अप्रैल 30 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसी को ही हम कैरी करके लेके जा रहे हैं 1 लाख। और फिर से मई 1 को हम इसे दिखाएंगे कि हमारे पास बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल है तो क्रेडिट बैलेंस, हमने इसको ब्रॉट डाउन लेकर आएंगे यहाँ पे, ब्रॉट डाउन 1 लाख, कि अभी भी हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है। सिमिलरली बैंक को भी मुझे ख़त्म करना है, 50,000 पर यहाँ तो है नहीं, तो इसको क्लोज कर देंगे लिख के अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 रुपीज़। और ये बैलेंस मेरा बैंक का बचा हुआ है, ये वो बैलेंस है जो मेरा बैंक का बचा हुआ है। इसको ही जब मैं नेक्स्ट मंथ यूटिलाइज़ कर सकती हूँ या नहीं, मई 1 को हम इसे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपीज़। इसी को ही हम दोबारा यूज़ करेंगे। तो जब मैं मई 1 को भी अपनी बुक खोल के देखती हूँ तो इट विल शो दैट आई हैव द बैलेंस ऑफ 50,000 इन माई बैंक अकाउंट। मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। मुझे चेक देना है तो मैं चेक से पेमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे शो करेगा मेरे पास अभी भी बैलेंस है। ऐसे ही आप परचेज को भी सिमिलरली सेम वे में यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन। You are going to write it down. So here you are going to write down April 30 by balance carried down. Similarly May 1 to balance brought down 30,000. Now what you all have to do, I have given a very simple example of how you can do the work. You have to solve illustration number 2
दैट इज़ ऑन पेज नंबर 9.8. क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज खुद करो और लेजर भी खुद बनाओ, और उसकी चेकिंग आप कैसे करोगे, आपकी बुक में पूरा सॉल्यूशन है, आप साथ साथ में देख के करोगे, जहाँ डाउट आएगा मुझसे पूछोगे. एटलीस्ट डू दिस मच, ओके, एंड देन वी विल discuss if there are any doubts. Thank you.